evening, everyone. Welcome to Beer Pe Charcha with iQuanta toppers. iQuanta this year had 65 99 plus percentilers. And today, we have an aspirant all the way from Indore, a grade A student through and through. But आज हम उनसे समझेंगे his journey from 87 percentile to a whopping 99.2 percentile in this year's CAT edition. Welcome Piyush Aras. Hello. And before we begin our conversation today, I think there's something missing in this setting. Definitely. Right? Beer पे चर्चा and beer नहीं है यहाँ पर. Can we please call for some beer right now? अब frame थोड़ा complete लग रहा है ना? So पहली बार तो cheers. Cheers. Cheers to you scoring 99.2. Thank you. So Piyush, to start it off, आप हमें कुछ बताइए अपने बारे में. Sure. So my name is Piyush Aras. I'm from Indore. So I'll just start my journey after school only. So in 2013, I enrolled in IIT Kharagpur as in mechanical engineering course for BTech and MTech, and I graduated in 2018 with a minor economics as well, which landed me into a job at Flipkart. That's awesome. Yeah, at corporate FP&A team, and since then I've been working with corporate FP&A team as a business finance analyst only. Okay. So Piyush, we understand that you scored 99.2 this time, right? Yes. But could you tell us a breakup of those marks? Yes, definitely. So the overall percentile was 99.2, as you mentioned. In quant I scored 99.6, which was my favorite subject, and definitely I was expecting that. In LRDI, which was not at all my favorite subject, I scored 97.6 just because of iQuanta. And in BRC, I was expecting More, although I scored 87.6 percentile in BRC. Okay, that's great. But 99.2 आपका पहले term में नहीं आए, right? Definitely. So आप बताइए मुझे, how many attempts did you give and when did you start your preparation? Sure. So yes, as you mentioned that it was not my first attempt. Yes, so it was my second attempt, and in my first attempt I scored 87 percentile. And at that time I thought that is it possible to score a nice score, 99 percentile? Is it possible? So this time I scored 99.2 percentile in my second attempt. And about the ideal time, so I think that around 6 to 7 months of rigorous preparation is required for scoring a 99 percentile. Okay. Definitely, but I won't say that start your preparation at 6-7 months before. You can start. No time is enough. Like you can prepare for 2 years also. But I think a sprint should start from January or February ideally. on a slow pace and start increasing the time giving for preparation. So there you have it, guys. The first tip that our aspirant has given out, that our topper has given out for the fellow aspirants, is that the optimum preparation time is about 6 to 7 months. He's advising the fellow aspirants to start in Jan-Feb, but increase your intensity, the number of hours that you put in gradually, right? Thank you for that so much. Piyush, आपने बताया था कि quant आपका favorite section रहा है, right? आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों quant आपको इतना पसंद है, and why is DILR such a big challenge? Sure. So I'll start with DILR. Why it was a challenge. So बचपन से मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में, स्पेशली पजल्स एंड ऑल सॉल्व करना. आई हैव सीन पीपल दैट हु एक्चुअली एंजॉय सॉल्विंग सुडोकू पजल्स और जो अलग अलग बुक्स आती है वो सॉल्व करना, जो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उन सब चीज़ों में. बट LR इज ऑल अबाउट दैट ओनली. यू हैव टू डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग जब जो आप उस दिन अप्लाई कर रहे हो. सो that was the thing why I thought that it was very difficult for me. And actually when I started the preparation, मेरे actual में 0 नंबर भी आए हैं. Wow. At that time it was 300 marks paper, so 8 sets आते थे. और मैं बस 1 घंटा बैठे रहता था कि मैं क्या करूँ. So it was like that. But gradually I thought that ठीक है, सब थोड़ी ना करना है, सब तो टॉपर भी नहीं करता है. Right. मुझको 1 करना है, मुझको 2 करना है. तो ऐसे करते करते धीरे धीरे I started focusing on. I made milestones कि अभी मुझे इस मॉक में बस एक ही सेट करना है, तो कितना इजी हो जाता है. 1 घंटे में एक क्वेश्चन, तो बहुत इजी है. So that is the thing which helped me in boosting my confidence.
एंड जिसकी वजह से LRDI आई वाज एबल टू इम्प्रूव डेफिनेटली. द मेन रीजन वाज जो यूजुअली लोगों को नहीं पता होता है कि कहाँ से करें हम क्वेश्चंस. जो बहुत ही लोग सेल्फ स्टडी करते हैं वो मोस्टली मैंने पता है कि मैं लास्ट ईयर करा था, सो टाइम की बुक्स फॉलो करते हैं. ओके. जो पर वो डेफिनेटली बेसिक्स के लिए ठीक है, बट जो मेजर सेट्स होते हैं, कैसे अलग अलग टाइप के सेट्स होते हैं, दैट आई कांट रियली हेल्प मी. लास्ट ईयर कैसे आए थे, उस पर क्या वेरिएशन आ सकता है. सो दैट वाज द थिंग. नाउ गोइंग टू क्वांट, I am still getting goosebumps. Yeah, so it's so from starting only I was very much interested in quant. Okay. As I mentioned that in JEE also I scored a good well in maths. But the thing is, when people say that आप इंजीनियर हो, आपको तो बहुत इजी हो जाएगा. एंड आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट. कॉमर्स के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ना इंजीनियर से तो बहुत इजी है. बट इजी कब तक है? जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तक कोर्स कर रहे हो. हमें बस ये होता है कि हमें कम पढ़ना पड़ता है, बट जब जिस टाइम पर सबने पढ़ लिया सब एक ही. सो वो पॉइंट था कि मुझे बहुत इजी हो गया था कोर्स कवर करना. मैंने 4 महीने, एज आई मेंशन दैट जनवरी से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. तो मैं कुछ और नहीं करता था, मैं क्वांट ही करता क्योंकि मुझे मजा आता था. तो मैंने कोर्स कवर कर लिया पूरा का पूरा अप्रैल तक. बट अगेन वो जो था उसके बाद भी मेरे नंबर क्वांट में नहीं आते थे. देन अगेन जो लेवल था, जो आई क्वांटा के डेली क्वेश्चंस आते थे, उसको आई स्टार्टेड डूइंग. पास्ट कैट क्वेश्चंस देखे एक बार. सो आफ्टर दैट आई रियलाइज कि ना बेसिक्स ठीक है, और एक नॉच ऊपर पढ़ना पड़ेगा जो कैट में आता है एक्चुअली. सो या, सो दैट वाज इट. I hope our viewers were listening intuitively because Piyush just dropped very vital piece of information here. LRDI में पीयूष के 0 नंबर भी आ चुके हैं. And despite being an IITian, it has been difficult for him to maneuver quant. But with consistent hard work and apt preparation, Piyush has made it so far. So that does not stop any one of you viewers to get this score as well. आपकी 99.2 परसेंटाइल की जो जर्नी रही है फ्रॉम 87, है ना, आपकी इस साल स्ट्रैटेजी क्या थी? ओके, श्योर. सो फॉर प्रिपरेशन 2 टाइप की स्ट्रैटेजीज होती है. फर्स्ट इज यू कैन फोकस ऑन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इक्वली, और तुम्हारा बैलेंस हो रहा है, एज एन ऑल सब्जेक्ट्स यू आर स्कोरिंग अराउंड मोर देन 90 परसेंटाइल, और थोड़ा किसी में ऊपर ज़्यादा हो गया तो यू विल डेफिनेटली इजीली स्कोर 99 परसेंटाइल. What I chose to do is focus on one subject specifically, that is quant. और बाकी पे जब when I thought कि ना काफ़ी strong हो गया मेरा subject, so I easily gave more time to BRC as well as LRDI. Sure. So basically there are 2 types of strategies. जिसमें आप first is जिसमें आप all you focus on all the 3 subjects. You are scoring 90 percentile in all the subjects, और थोड़ा मैं किसी में ऊपर नीचे होके ज़्यादा नंबर लिया है तो 99 परसेंटाइल. बट सेकेंड स्ट्रैटेजी इज यू कैन फोकस ऑन वन सब्जेक्ट वेरी मच, स्कोर अ वेरी हाई स्कोर इन दैट सब्जेक्ट, और बाकी सब में यू कैन स्कोर डिसेंट इनफ कि एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर हो जाए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो आई फोकस ऑन द सेकेंड स्ट्रैटेजी. क्वांट में आई स्कोर्ड 99.6 परसेंटाइल एज आई मेंशन. सो मैंने जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एज आई मेंशन. सो उसमें अराउंड अप्रैल आई वॉज एबल टू कवर ऑल द टॉपिक्स. बाय कवर आई मीन टू से कि ना एक बार गो थ्रू ऑल द कंसेप्ट्स, उसका एक एप्लीकेशन देख लिया, बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो देख लिए. बट डेफिनेटली दैट इज नॉट एट ऑल इनफ. सो हायर लेवल क्वेश्चन पे फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस वॉज फॉर क्वांट. आई जस्ट फोकस किया ना डीप में कैसे प्रिपरेशन करनी है. टिल अप्रैल आई एम टेलिंग कि ना कैसे करना चाहिए जब बहुत लो लेवल पे पढ़ाई चल रही होती है. सो फॉर क्वांट दिस वाज इट. फॉर VRC व्हाट आई डिड वाज फोकस ऑन रीडिंग आर्टिकल्स, क्योंकि देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लोग बहुत रैंडम पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ना न्यूज़ ना पढ़ें, और जो आर्टिकल्स होते हैं, अगर मल्टीपल साइट्स, इयन है, स्मिथसोनियन मैगजीन है, अगर मल्टीपल साइट जहाँ पे आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जिसमें डेंस रीडिंग होती है. ओके. सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग RCs in starting of the few months, we should focus on reading very dense English, कि हमें एटलीस्ट आदत तो लगे पढ़ने की. करेक्ट.
This is not for people who are already good in English. This is for average people who are average reader, जो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं. Okay. Second is LRDI. So as I mentioned, I was scoring 0. For that also I focused on the time modules. Those are good for basic preparation. But उससे उस लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं. Okay. अलग ही नॉच लेवल होता है कैट का जो होता है. So post April it's very important, April and May, to focus on the CAT level questions. So for quant specifically, I referred multiple sources and the major was iQuanta. Okay. उसमें daily level quant questions post होते हैं. So I was every day doing those quant questions. Around 10-20 questions post होते हैं. On paid group as well as unpaid group. So मैं सभी फॉलो करता था कि कुछ मिस ना हो जाए. And definitely there will be some time कि ना आपका कुछ बैकलॉग हो जाए. But it is very important कि आप बैकलॉग भले बनता जाए बट उसको कवर करो. Okay. क्योंकि एक बार जो आदत लग जाती है कि क्वेश्चन छूट गए फिर वो छूटते ही जाते हैं. Correct. सो इट्स क्योंकि व्हेन पीपल आर पोस्टिंग क्वेश्चंस तो उनके दिमाग में कुछ माइंडसेट होता है कि हमें ये कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं. Right. So it's very important to go through all the concepts and all the applications. Right. For LRDI, again I was focusing on iQuanta daily sets, which was posted on the paid group. So daily दो sets उसमें post होते थे और I was covering those daily sets. So the best thing is usually जो solutions होते हैं LRDI solutions, but यहाँ पे हमको video solutions मिलते थे. So it was very good source कि हमें एक्चुअल में थिंकिंग प्रोसेस पता चलती थी कि सोचना कैसे है. क्योंकि एक बार क्वेश्चन है सोल्यूशन ही है तो पता चल गया क्वेश्चन है बट क्या सोचना है. ऐसे सोच सकते हो बट ऐसे नहीं करना है. दिस इज द बेटर एफिशिएंट मेथड क्योंकि टाइम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कैट. So that was for LRDI. For VARC, I started solving RCs from April onwards, and I was solving around 2 to 3 RCs every day. And so this was RC part. But for VA, very separate effort is required because उसमें para jumble होता है, odd one out होता है. So it's very important to focus on that also. So again, there is no specific source for VARC. So it's better to for verbal. So it's better to focus on multiple sources for the questions of verbal. And yeah, so that was it. That's great. That's actually really helpful. बहुत ही detailed strategy यहाँ पर पीयूष ने हमें बताई है. अब another very important question that comes up here is पीयूष, अगर कोई आपकी रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहा होगा, right? You'll understand लास्ट ईयर आपके 87 परसेंटाइल थे बट इस साल आपके 99.2 परसेंटाइल है, विच इज अ मेजर लीप, राइट? Our viewers would love to understand from you what was it that you did differently this year कि आपको वो extra edge मिली of getting 99.2 percentile. So last year for quant I will mention कि let's say I am doing some question और मुझे उसमें डाउट आ गया. So डाउट्स पेंडिंग हो जाते थे और वो क्लियर नहीं हो पाते थे. सो आई यूज्ड टू से कि चलो ठीक है एक क्वेश्चन छूट गया तो क्या, पर वो थोड़े थोड़े डाउट्स हो के काफ़ी मेजर इम्पैक्ट पड़ जाता है आपके कंसेप्ट पे. सो दैट इज द मेजर थिंग विच वॉज चेंज व्हेन आई जॉइंड iQuanta. सो इसमें 24 आवर्स, लिटरली 24 आवर्स, आप रात को 2 बजे डालेंगे, आपको सुबह 6 बजे डालेंगे, तब के तब सोल्यूशन मिल जाता है. सो यू वुड से कि ये कैसे हो सकता है. बट देयर आर 2 थिंग्स टू दिस. फर्स्ट इज पीयर सॉल्यूशंस भी होते हैं और iQuanta के फैकल्टी के सॉल्यूशंस भी होते हैं. एंड इट वाज अ कंपटीशन, कौन पहले कौन अच्छा कोई सॉल्यूशन डालता है. सो दैट वाज द वेरी गुड थिंग व्हिच हैपेंड. सेकंड इज for LRDI, as I already mentioned that efficiency is very important. अगर आप एक सेट को कर सकते हो कोई भी कर लेगा डेफिनेटली. एक पॉइंट के बाद एक सेट को 1 घंटे में कोई भी कर लेगा. बट बात वही है, आपको 10 मिनट में वो सेट कैसे सॉल्व करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट. सो दैट वाज द लर्निंग व्हिच आई गॉट फ्रॉम द iQuanta वीडियोस. Okay. कि अलग अलग टाइप के केसलेट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के टाइप्स होते हैं जो सेट्स आते हैं, कैसे रीड करना है उसको. सो दैट वाज द अप्रोच, द वीडियो सॉल्यूशन व्हिच वर गिवन, दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर VARC, स्पेशली VARC. So Indri sir was used to give a very detailed solution. ऐसा नहीं है कि बस RC हो गया और फिर क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं. He used to give individual line wise RC
का सोल्यूशन कि इस लाइन का क्या मतलब है, इसको ये वाला पार्ट तुम धीरे पढ़ो, ये वाला पार्ट तुम बहुत फास्ट पढ़ सकते हो. तो दैट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें भी समझ आता है कि हमें पढ़ना क्या है, क्या पार्ट स्किप करना है. So that was the thing which was missing in the last year and which helped me this year to score a 99 percentile. That's really wonderful, right? So Piyush here has mentioned a lot of facets of this examination. I hope our viewers are taking note of this. Not just LRDI में video solutions, but the most important part was about VARC, where you understand how one answer is different from the other. Because only one of those answers is going to get you a positive marking, the others are going to get you negative marks. Apart from that, Piyush also mentioned about how he got top-notch guidance in quant that enabled him to understand tips and tricks from an application perspective rather than a concept knowledge. So, Piyush, मुझे बताइए, from all of this that you had from iQuanta, what was your favorite and what was the most important thing that iQuanta provided to you as an aspirant? Sure. So the major important thing which iQuanta provided was #iQuanta. So it was basically every time in our sessions when questions were posted, people used to give answers. But सर का solution जो होता था वो 2 लाइन का होता था. फिर हमें लगता था ऐसे भी हो सकता है. So that was the tricks कि ये ऐसे भी questions कर सकते हो तुम, फालतू लंबे एक पेज की solution करने की जरूरत नहीं है. So it was more focused on efficiency कि आप टाइम कैसे बचा सकते हो अपना. ये क्वेश्चंस कोई भी कर लेगा. It is very easy. As you would know कि ना क्वांट का जो सिलेबस होता है that is till 12th only. So क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होंगे, बट उसको 30 सेकंड्स में 1 मिनट में कैसे करना है, वो जो ट्रिक्स, कौन सी चीजें एक्चुअल में याद करनी है, कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं आने वाली है, कौन से तुम डिराइव कर सकते हो. तो वो हमें सर बहुत ट्रिक्स बताते थे which really helped. Second is the peer learning platform. It is actually very good. So I got a lot of friends. I would like to mention something. Yeah, definitely. So Ishu was one of my friends. So for VRC specifically, after giving every mock, after giving every sectional, we used to discuss the whole sectional. Like कभी कभी ऐसा होता था कि ना मेरा सही है उसका गलत है, तो मुझे उसको समझाना पड़ रहा है मैंने क्यों मारा. वो बोलता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है. राइट, दैट वाज द थिंग. तो आपको डिबेट डिस्कशन करना है तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी. करेक्ट. एंड द थर्ड पॉइंट इज द लाइव सेशंस. सो उसमें द प्लेटफॉर्म व्हिच iQuanta प्रोवाइड्स, इट इज अ बिट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, नॉट लाइक अ यूजुअल क्लास जिसमें जो ऑफलाइन क्लासेस होती है. बच्चों को बेसिकली डाउट होता है कि ऑफलाइन क्लासेस जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए. सो द थिंग इज वाई टू वेस्ट टाइम, जाके कम्यूट का टाइम देखो जाओ. सो वो टाइम वेस्ट हो रहा है. व्हेन यू आर गेटिंग अ बेटर क्वालिटी ऑनलाइन, आपका टाइम भी बच रहा है, आपको क्वालिटी भी ज़्यादा मिल रही है. सर जस्ट गिव यू एग्जांपल, जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी 9 बजे का क्लास होता था, 8:30 तक या 8:45 तक मेरी मीटिंग चलती थी. जस्ट 15 मिनट्स का ब्रेक और मेरी क्लास, आई एम एबल टू अटेंड द क्लास. सो जो क्लासेस होती थी उसके अंदर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मी इज, जो सेशंस होते थे उसमें क्वेश्चंस पोस्ट होते थे एंड एवरीवन वाज competing कि कौन पहले आंसर कर रहा है. सो इट वाज अ मोर प्रेशर देन मॉक. मॉक में मुझे इतना प्रेशर नहीं होता था जितना मुझे कि पहला आंसर करना है, सही आंसर करना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच हेल्प मी इन स्कोरिंग. रियली वंडरफुल. आप थोड़ा विस्तार में बताएंगे कि हाउ इज iQuanta's pedagogy different from all other platforms? Yeah, sure. So the major thing is first iQuanta जो है it helps, it's more application based, not just concept clearing. So starting में concept video post होता है, after that they focus more on application कि इस concept को use करिए कहाँ का application आ सकता है. Especially numbers is a very vast topic जिसको लोग बहुत ही easily लेते हैं. काफ़ी कोचिंग बहुत इजीली लेती है कि इतना यूज नहीं होने वाला, बट एक्चुअली नंबर्स, इफ द नंबर्स टॉपिक इज स्ट्रॉन्ग, तो एक्चुअली यू कैन सेव 30 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स इन एवरी क्वेश्चन. मतलब अराउंड इन ओल्ड फॉर्मेट, and out of 34 questions you can save around 20 to 30 seconds in around 15 to 20 questions. So that is the major thing. Second is they are using Facebook as a teaching platform. So definitely on first time when you are giving your learning, it would be a bit difficult. But अब जब आदत हो जाती है, so questions are posted as a post
और उस पर आपको आंसर्स कमेंट करने हैं. So it's very very easy. It's very intuitive. So that is the two major things which are very different. Okay, that's wonderful. आप बता रहे थे कि आपने प्रिपेयर किया एंड अब मेजर जो क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन के बाद होता है एक्चुअल मैच खेलना, है ना? एंड दैट इन कैट सेंस इज द मॉक एंड देन इट्स एनालिसिस, राइट? Correct. टेल मी हाउ मच इंपॉर्टेंस डिड यू गिव टू बोथ दीज थिंग्स, मॉक्स एंड एनालिसिस, एंड आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी मॉक्स एंड एनालिसिस के लिए? So the major important thing which students do not focus on is giving more number of mocks. So in this format, I gave around 50 mocks, which is a very huge number. In last format, which was a 3 hours, people usually suggested कि 30 to 35 mocks दो, which is actually good. कि आपको आइडिया लगता है कि आप on an average कितना स्कोर कर रहे हो. So I'll just state कि मेरे कितने मार्क्स आए थे स्टार्टिंग में. In the first mock which I gave, I scored decently only. It was a old format. So around 128 marks out of 300. So it was a decent. But बीच में marks drop हो गए थे. But again, so here I want to help me a lot. iQuanta gave me so many peers जो हम साथ में मिलके मॉक्स देते थे. We used to decide कि कौन सा मॉक देना है, कब कौन सा सेक्शन देना है, और फिर आइडिया लगता था कि किसी का खराब भी आ गया तो ठीक है, इट्स ओके. वी यूज्ड टू डिस्कस. ऐसे में लास्ट टाइम व्हेन आई वाज अलोन, सो दैट वाज अ डीमोटिवेटिंग फैक्टर कि मुझे लगता था कि यार मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे हैं, अब तो नहीं हो पाएगा. सो हियर दैट मोटिवेशन कम्स. सो सेकेंडली फॉर LRDI फेमिलियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितने टाइप के सेट्स के साथ आप फेमिलियर हो. इट विल हेल्प यू की अंडरस्टैंडिंग कि आप एग्जाम सिचुएशन में, मॉक प्रेशर में या फिर एग्जाम प्रेशर में आप किस टाइप के सेट प्रेफर करोगे चूज करना और कौन से आपसे हो पाएंगे. सो इट्स लाइक कि आप 1 घंटे में कोई भी सेट सॉल्व कर सकते हो. सो बट 15 मिनट्स में कौन सा सेट सॉल्व हो पाएगा ये आपको आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई फॉरगॉट टू मेंशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज LRDI सेट सिलेक्शन. सो कोई भी सेट हो, कोई 1 घंटे में कर ही सकता है, बट आपसे एग्जाम में कौन सा सेट होने वाला है ये सीखना इज फेमिलियरिटी. आप जितने आप सॉल्व करोगे उतना आपको आसान पड़ेगा. सो iQuanta एक इनिशिएटिव था जिसमें लास्ट के 15 डेज तो उन्होंने बहुत सारे LRDI डेली सेट स्टार्ट कर दिए थे डालना, अपार्ट फ्रॉम द which was previously put in the group. So उसको रेगुलरली फॉलो करना, उसको पूरा एनालिसिस करना, that was very important. फॉर क्वांट. As I already mentioned that doubt solving is very important. आपको कुछ भी डाउट है, छोटा सा डाउट है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ो मत. भले ही छोटा डाउट है, भले ही वापस रिपीट हो गया डाउट, तो उसको मैं ग्रुप में डाल देता था. एंड एवरी टाइम या तो कोई पीयर रिप्लाई कर रहा है या तो iQuanta के टीचर्स फैकल्टीज जो है उससे रिप्लाई आ जाता था. सो दैट वाज द मेजर थिंग विच हेल्प्ड. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटेनिंग अ बुक और एक्सेल शीट. मैंने एक्सेल शीट मेंटेन करी थी जिसके अंदर आई यूज्ड टू ट्रैक कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है इन ऑल द थिंग्स, इन क्वांट एज वेल एज LRDI, VRC ऑल्सो. इन क्वांट आफ्टर एवरी मॉक आई यूज्ड टू सी कि अलजेब्रा मेरे इतने क्वेश्चन आए थे इस मॉक में, इतने क्वेश्चन मुझसे हुए, इतने इनकरेक्ट हुए, इतने अटेम्प्ट नहीं हुए. एंड आफ्टर एवरी मॉक आई यूज्ड टू फोकस ऑन दोज स्पेसिफिक टॉपिक्स कि मुझसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुए जबकि मुझे आता सब है. आफ्टर एवरी एनालिसिस एवरी स्टूडेंट फील्स यार ये तो कर सकता था, मैं ये तो कर सकता था, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर कर सकते थे तो करा क्यों नहीं. सो दैट इज द थिंग कि टाइम प्रेशर की वजह से क्वेश्चन होते नहीं है. सो अगर आप उसके 50 क्वेश्चन कर लोगे तो आपसे होने लगेंगे ऑटोमेटिकली. सो दैट इज द थिंग विच आई लर्नड द मोस्ट थ्रू द मॉक एनालिसिस. व्यूअर्स याद रखें, इट्स अ मैराथन एंड नॉट अ रेस, राइट? एंड हमें समझना है अब पीयूष से कि इस लंबे मैराथन में उनका मोटिवेशन क्या रहा है थ्रू आउट दिस मैराथन. सच बताऊं? हाँ बिल्कुल. तो व्यूअर्स याद रखें कि अब सिर्फ सच्ची बात होगी इस पे. प्लीज बताइए. पैसा. नहीं, but on a serious note, it's the thing when I realized that I should do an MBA is during my stint at Flipkart. So I realized that all the senior leadership which is there is either from an IIM or a good, very reputed college. So that motivated me that if I want to reach to that position, I will need an MBA degree. Definitely education is ऐसा नहीं है कि कोई डिग्री नहीं होगी और या फिर कोई कुछ कर नहीं सकता, उस पोजीशन पहुंच नहीं सकता. बट एक फॉर्मल एजुकेशन इज अ नेसेसिटी. एक इंडियन सोसाइटी में बन चुका है, पता नहीं क्यों बना.
So that is the motivation which I had all during माई प्रिपरेशन. एंड आपको सपोर्ट क्या मिला इस पूरे मैराथन में? सपोर्ट आई वुड से घर वाले ऑल टाइम सपोर्ट ही करें कि बेटा कर लो अच्छी बातें करेंगे तो. सेकेंड इज द पीयर प्लेटफॉर्म जो मैंने मेंशन करा कि द फ्रेंड्स विच आई मेड, ईशू, सृष्टि, गुंजन, वंशिका, सो नाम लेना पड़ता है थोड़ा, ना लोड ले लेंगे कोई. तो दोज वर वेरी एक्चुअली बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम कि ऑल टाइम हम डिस्कस करते रहते थे कि यार चलो ठीक है, किसी का कभी कम आ गया, किसी का कभी ज़्यादा आ गया. सो हम साथ साथ में पढ़ाई भी करते थे. मतलब वी यूज्ड टू मेक आफ्टर द क्लासेस वी यूज्ड टू सेट सम टाइम कि हम 1 से 2 कोई सेक्शनल लेंगे और एक साथ सेक्शन लेते थे, पूरा सिंक करके सेक्शन लेते थे. तो कभी कभी ऐसा होता था कि अरे पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, पढ़ भाई क्या कर रहा है, ऐसे होगा, ऐसे चलेगा. सो ऐसी चीजें होती थी विच मोटिवेटेड मी ऑल द थ्रू आउट द दिस 1 year पीरियड. लोग बोलते हैं कि कैट प्रेप के टाइम पे सोशल लाइफ थोड़ी एलिनेट हो जाती है, बट पीयूष हमारे यहाँ पर एक मिसाल है दैट विद हिज प्रिपरेशन ही हैज इंक्रीज्ड हिज सोशल लाइफ, राइट? सो पीयूष, आई अंडरस्टैंड आप थोड़े फन मिजाज के इंसान हैं. व्यूअर्स, आई लाइक टू टेल यू दैट जस्ट आफ्टर दिस इंटरव्यू ही इज ऑन हिज वे टू कसौल, एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्यों जा रहे हैं पीयूष वहां पर. बट टेल मी दिस, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपने अपने आप को कैसे स्ट्रेस हटाया? व्हाट वुड यू डू व्हेन यू आर नॉट स्टडीइंग? श्योर. सो यूजुअली तो आपको दिख ही रहा है क्या होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड से कि थोड़ा सोशल लाइफ ऑन अ डिजिटल लेवल कम हो गया था, जो आई थिंक इज नेसेसरी ऑल्सो. जैसे लोग ऑल टाइम बहुत ही इंस्टाग्राम, बहुत ही स्नैपचैट ये सब चलाते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, तो उस लेवल का डिजिटल सोशल लाइफ जो आई वुड से फेक ही होता है वो थोड़ा कम हो गया था. बट इंटरेक्शन जहाँ पे एक्चुअली नेसेसरी है वो काफी बढ़ गया था. सो दैट वाज द मेजर थिंग विच हेल्प्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट हम कभी कभी पढ़ाई को छोड़ के अपनी टीवी सीरीज भी सिंक कर लेते थे कि चलो ब्रुकलिन 99 देखा जाए, चलो सूट्स देखा जाए. सो दैट वाज द थिंग विच वी यूज्ड टू डू. बाकी तो द राइट बैलेंस बिटवीन इंश्योरिंग कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो और उसके साथ साथ अपना थोड़ा फन भी चल रहा है, दैट विल हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड इन दिस एंटायर गेम. तो पीयूष, मैराथन अभी आधी खत्म हुई है. बिल्कुल. 99.2 परसेंटाइल आ चुके हैं. व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी गोइंग अहेड टू द जीडीपीआई राउंड? 99 आई है तो देखते हैं अब कौन कितना डिस्काउंट देता है. उस हिसाब से डिसाइड करूंगा. वाले सुन रहे हैं ना? कहाँ सुन ले. या सो ऑन अ सीरियस नोट, अभी एज सच तो कोई स्टार्ट नहीं करा है. जो अपने करंट अफेयर्स होते हैं, थोड़ा न्यूज़ पढ़ना होता है. डेफिनेटली इंटरव्यूज में वही पूछते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज CV बेस्ड होता है इंटरव्यू थोड़ा. सो एज सच तो आई नो ऑलरेडी व्हाट आई डू इन फ्लिपकार्ट. So and also college के जो case study competitions थे. So I think I'm going through after this trip I'll go through that CV based questions. थोड़ा और current affairs के बारे में पढ़ूंगा. So interview के लिए उस हिसाब से I plan to prepare. Okay, that's wonderful. Finally, Piyush, before we let you go off your trip, our viewers would like to understand your final tips, right? आपकी फाइनल एडवाइस क्या है फॉर forthcoming aspirants to cat crack and not just cat crack, to get it above that 99 hurdle? So the final advice is जनवरी से स्टार्ट कर दो. थोड़ा भी रिस्क मत लो. क्यों रिस्क लेना है? आई हैव सेड कि ना 6-7 महीने इज इनफ, बट 6-7 महीने इज रिगरस प्रिपरेशन इज इनफ. अगर थोड़ा लाइटर नोट हो गया किसी का बीच में, लाइक मेरे साथ ही हुआ था, मुझको कोरोना हो गया था. सो आई वाज वेरी मच वरीड कि है ना बीच में ब्रेक आ गया तो क्या होगा. बट इट टर्न्ड आउट टू बी गुड ओनली. कुछ ऐसा इशू नहीं हुआ. सो फाइनली जनवरी से स्टार्ट कर दो. VRC जो अपने आर्टिकल्स होते हैं, RCs होते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो. फेजिंग में ऊपर ले जाओ. झटके से एकदम पढ़ोगे तो फिर वो लग जाएगा कि ना छोड़ो यार, इतना नहीं हो पाएगा हमसे. सो धीरे धीरे आदत बनेगी. तो इट्स बेसिकली स्टैमिना बढ़ा रहे हैं हम खुद का.
पढ़ाई का स्टेमिना जो बढ़ा है, जो छूट जाता है, स्पेशली वर्क एक्स जो जिनका होता है कि हम इतना जॉब में फोकस हो जाते हैं कि पढ़ाई वाला जो फैक्टर है वो छूट ही जाता है एकदम। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है थोड़ा कि वो पढ़ाई के मोमेंटम में होते हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो जनवरी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। VRC मेंशन किए ना, आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। LRDI के जो बेसिक सेट्स होते हैं, नॉट कैट लेवल, डेफिनेटली नॉट कैट लेवल, क्योंकि वह ऐसा लगेगा ये तो नहीं हो पाएगा हमसे। सो जो बेसिक केसलेट्स होते हैं वो स्टार्ट करना सॉल्व करो। और फॉर QA जस्ट गो थ्रू कंसेप्ट कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, पढ़ सकते हैं, कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और बुक मार्क दोज टॉपिक्स कि हमें इस पर बहुत फोकस करना है। जो हमारे वीक सेक्शंस हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है, या फिर जब अप्रैल से कोई कोर्स, अगर आई क्वांटा का ही कोर्स होता है, सो इधर फर्स्ट बैच में ज्वाइन कर लो और इधर सेकेंड बैच में ज्वाइन कर लो। सो उस टाइम पे जो हमारे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं, तो उस टाइम पे उस पॉइंट्स पे फोकस करो। That's great. Thank you so much, पीयूष, हमसे आज बात करने के लिए. A lot of tips, a lot of tricks, and a lot of advices have been given in today's talk. And I hope our viewers have written them down, because ऐसे ही पता चलता है कि टॉपर्स के दिमाग में क्या चलता है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है. So thank you once again for joining us today. No issues. And I hope you all have a great evening. For more such updates and in-depth conversations with our CAT toppers, do subscribe to our YouTube channel.